Hello everyone, welcome to the today's class of the Hindu editorial. So today's topic of the editorial is the presidency of the Draupadi Murmu. Okay, so as we all know, Draupadi Murmu became the 15th president of India. Going into the article, let's discuss about some words. Let's see the vocabulary. So the first word is accurately. Acutely. Okay, here acutely is used as adverb. The meaning of acutely is, with the reference to something unpleasant or unwelcome, or we can say intensely. That means the thing is very intense, or the thing is very unpleasant, or it is unwelcoming. Okay, so that is the meaning of acutely. Its meaning and will get its meaning will get more clear when we see how this word is used in the article, in what context it has been used. Seeing that, the more conceptual clarity will come in your mind. Okay, so the next word is articulated. So what's the meaning of articulated? Articulated means to express, okay, to put an idea or feeling into words. Okay, here it is used as an adjective. The Hindi meaning of the articulated will be to express the feeling. मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपने इमोशंस को व्यक्त करना, शब्दों में पिरोना, उसे कहते हैं articulated. Next, the third word is invigorating. The meaning energy. Here it has been used as an adjective. Next word is gorging. Here gorging is used as gerund or present participle. What is the meaning of the gerund or PP? When to a noun, if we add ing, okay, from that it becomes gerund or present participle. On this is the very brief meaning of gerund and pp. How we are going to identify that whether it is a gerund or whether it is the past, whether it is the present participle. For that we need to go into depth analysis of grammar thing, so that we will be discussing on some another days, identification of the gerund and present participle. As of now, just that much is enough. That gerund or participle comes from the noun when we add ing to it. Okay, that much is enough for now. So the meaning of gauging is estimate or determine the amount level, the amount or the level or volume of. Okay, that means measuring or estimating. The Hindi meaning of gauging is, मापना. हम कहते हैं ना, किसी स्थिति का मूल्यमापन करना. ठीक है, किसी स्थिति का अनुमान लगाना, निश्चय करना. That is called gauging. Next is enlisting. Here enlisting is also gerund or pp. Then the meaning of enlisting is enroll or be enrolled. किसी चीज में अपने आप को engage करना. From the word itself we can understand the meaning. Enlisted means to get listed into something, to get enrolled, to get engaged. Leeway. What's the meaning of leeway here? Leeway is used as a noun here, the meaning of which is the amount of freedom to move or act
that is available. That means the level of freedom we have got to act on a particular situation is called as leeway. ठीक है, स्वतंत्र हमें कितना मिला है, हम किस चीज पे किस हद तक काम कर सकते हैं, किस स्वतंत्रता के साथ हम काम कर सकते हैं. That is called the leeway. Okay. Next is disempowerment. The meaning of disempowerment is to cause to be less likely than others to succeed. The Hindi meaning of disempowerment is किसी व्यक्ति को रोकना, ठीक है, ताकि वो दूसरों से आगे न बढ़ पाए. That is the meaning of disempowerment. ठीक है जी. So let's move towards our article. So this is the what we call the title of the today's editorial, which is presented in the Hindu newspaper. Okay, so let's discuss what does the article says. Madam President on Draupadi Murmu's election as India's 15th president. So we will be seeing and or we will be learning, we can say, about Draupadi Murmu. Okay, how she became the president, what all things we need to consider, everything. The subtitle of this article is the election of Draupadi Murmu should lead to more attention on the rights of tribal people. As we all know now, Draupadi Murmu became the president of India. So with that, now the more attention should be given on the rights of the people, on the rights of the tribal people. Why? Because as we all know, if you are more aware into the current affairs and political thing, we all know that Draupadi Murmu belongs from the tribal community. Okay, she's the first woman who will be representing as president of India from the tribal community. Okay, so let's move to our article. Okay, let's read. The election of Draupadi Murmu as India's 15th president is rich in symbolism. In the 75th year of country's independence, Ms. Murmu becomes the second woman to occupy the Rashtrapati Bhavan and the first member of tribal community to do so. Okay, as we all know, Draupadi Murmu became the 15th president. Okay, and now we are celebrating our 75th year of independence. In that year, Draupadi Murmu becomes the second woman to occupy the Rashtrapati Bhavan. What is Rashtrapati Bhavan? It is the residential place of President of India. Okay, she becomes the second woman. Who is the first woman? Pratibha Devi Patil. She was the first woman who became. She was the first woman who became the president of India. Now Draupadi Murmu is the second one to occupy that position. And the first member, she's the first member of a tribal community to do so. Okay, from the tribals also, she's the first woman to represent as president of India. Okay, her membership of the Santhal tribe is in focus. Okay, she's also the member of the Santhal tribe. She has risen through the ranks in Bharatiya Janata Party and has shown mind of her own during her stint as the governor of Jharkhand. Okay, what author is telling here is she developed her political career by being in the Bharatiya Janata Party, that is in BJP, and has shown a mind of her own. That means she was not following the the conventional type of governors. Like we, as we all know, that many governors
they just act as per the instructions given to them by the president or by the prime minister. They work only up to that much. When it comes to the discretion of their own, many a times it has been seen that they do not follow their own discretion. They go as per they are instructed by the prime minister or president. Okay, when they have an opportunity also, governor has their own powers. Okay, so when the time comes to use that power, instead of using that, they follow the instructions of the prime minister or president. That's the thing what the author wants to convey us. ठीक है. If we go in the Hindi meaning of this, हमने कई बार देखा है कि जो गवर्नर्स होते हैं, जब भी उनको किसी चीज पे कोई एक डिसीजन लेना होता है, तो जबकि उनके पास पावर होता है कि वो अपने पावर्स को यूज करते हुए कोई भी डिसीजन दे सकते हैं, उनके पावर्स के दायरे में रहते हुए वो अपने मर्जी से जो भी डिसीजन दे सकते हैं वो मानना होता है. पर कई बार ये देखा गया कि हमारे देश में जब भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है, विषम परिस्थिति हम कह सकते हैं, तब जो गवर्नर होते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए ही आगे बढ़ते हैं. पर ऐसा द्रौपदी मुर्मू जी ने नहीं किया था जब वे गवर्नर थी झारखंड की. तब उनके गवर्नर की बात आ ही गई है तो मैं ये भी एक बात ऐड करना चाहूंगा कि शी वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ झारखंड. वो पहली ऐसी महिला है जो गवर्नर बनी है झारखंड स्टेट की. ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. होप दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू यू. Okay, so the next paragraph is founding figures of the Republic were acutely cognizant of disadvantageous position of the tribes people and made special provisions such as the fifth and sixth schedules of the constitution. Founding figures of the Republic मतलब जो शुरुआती दौर था जब इंडिया को एक रिपब्लिकन कंट्री डिक्लेयर किया गया था. फाउंडिंग फिगर्स मतलब जो शुरुआती फिगर्स थे, ओके, वेर अक्यूटली कॉग्निजेंट. अक्यूटली में बहुत एक्सट्रीम इंटेंसली, हमने पढ़ा था ना, बहुत इंटेंसली कॉग्निजेंट थे किस बात के लिए, ऑफ द डिसएडवांटेजेस पोजीशन, जो कि उनकी स्थिति थी ट्राइब्स पीपल की, जो आदिवासी लोगों की स्थिति थी हमारे देश पे, वो बहुत ही डरावनी थी, इंटेंसिफाइड थी, इंटेंसली डरावनी थी, मतलब बहुत ज्यादा भयानक थी. इसी कारण एक स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में, ताकि वे भी आगे आए, उनका भी डेवलपमेंट हो. ठीक है. जयपाल सिंह मुंडा, स्पोर्ट्समैन एंड ट्राइबल लीडर. जयपाल सिंह मुंडा जी कौन थे? जो कि स्पोर्ट्समैन और लीडर थे, ट्राइबल लीडर थे. was prominent member of the constituent assembly. वे एक prominent मतलब important member थे constituent assembly के, who forcefully articulated, जिन्होंने articulate किया, जिन्होंने व्यक्त किया, express किया the fears and hopes of the tribes people. जिन्होंने जो ट्राइबल लोग थे उनके जो भी समस्याएं थी, उनके जो भी डर थे, उनकी जो भी स्थिति थी, पे एक मेंबर थे, जैसे हमने पढ़ा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे. तो वो ऐसे मेंबर थे, एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे, जिन्होंने ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोगों की स्थिति को व्यक्त किया, आर्टिकुलेट किया. ठीक है. इन 2000 टू स्टेट्स झारखंड एंड छत्तीसगढ़ were formed to give more focused attention to the concentrated tribal population in these regions. ठीक है. तो जो झारखंड और छत्तीसगढ़ एरिया में जो ट्राइबल पीपल रहते थे, उनको और ज्यादा अटेंशन मिले, उनके लिए और ज्यादा काम किया जाए, इस तहत सन 2000 मतलब 2000, इन द ईयर 2000 में दो स्टेट्स बनाए गए जिसका नाम झारखंड और छत्तीसगढ़ था, ताकि
अगर किसी एक रीजन को हम अलग से स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं, तो वहां से अलग से उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। वो स्टेट्स के जो सिटीज है वहां से अलग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के उनको एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के वो हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ की स्टेट असेंबली गठित होती है। तो इस सब से क्या होता है, और ज्यादा तरीके से हम ज्यादा अच्छे तरीके से उन स्टेट्स के लिए काम कर सकते हैं, उन स्टेट्स को हम नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ अवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसीलिए वो अलग से स्टेट भी गठित किया गया। और क्या किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ट्राइबल पीपल के लिए, हम ऑथर बताते हैं, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट वाज पास्ड इन 2006। ये एक्ट भी पास किया गया ट्राइबल पीपल के, उन लोगों के भले के लिए, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमें क्या क्या बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज ट्राइबल पीपल के लिए क्या क्या किया गया था। सो फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल्स बनाए गए, प्रोविजंस कुछ बनाए गए उसमें। फिर जयपाल सिंह मुंडा जी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने कुछ काम किया। देन अलग से स्टेट्स बनाए गए। सो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या किया गया है अब तक ट्राइबल लोगों के लिए, वो हमें ऑथर बता रहे हैं इस पैराग्राफ पे। नेक्स्ट, मिस मुर्मू मिस मुर्मूज इलेक्शन इज माइलस्टोन, वो एक मील का पत्थर है इन द जर्नी ऑफ ट्राइबल एम्पावरमेंट। जो ट्राइबल लोग हैं उनको सशक्त बनाने के इस दौर में, ठीक है, इस कड़ी में वो एक मील का पत्थर है उनका प्रेसिडेंट बनना। तो शी इज बाय नो मीन्स लिमिटेड टू हर आइडेंटिटी, इट इज मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर इंडिया। ये एक बहुत ही गर्व की बात है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द थिंग कि वो एक दिस थिंग क्या कहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ये भी एक गर्व की बात है कि वो एक इकलौती ऐसी पहली महिला है जिन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी से इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी एज अ वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये गर्व की बात है पूरे देश के लिए भी, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए तो है ही, देश तो सशक्त बनेंगे ही, पर पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है, ठीक है। फॉर द बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दिस इज अ मोमेंट ऑफ पॉलिटिकल टर्निप ओवर द अपोजिशन। तो बीजेपी के लिए और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये एक पॉलिटिकल ट्राइम्फ है। टर्निप का मतलब है विक्ट्री, विजय है उनके अपोजिशन के अगेंस्ट, ठीक है। वो अपोजिशन से जीत गए हैं, किस लिए वो जीत गए हैं आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। Paving the way for a tribal woman to succeed a Dalit is in the highest office। उन्होंने क्या किया है नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने एक रास्ता बना के दिया है ट्राइबल वुमन को सक्सीड, मतलब उनकी जगह लेने के लिए। किनकी जगह, एक दलित की। दलित यहाँ पे किनको यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है, हमारे जो अभी के प्रेजेंट जो राष्ट्रपति जी थे रामनाथ कोविंद, उनको उनका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि वो जो हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, अब उनकी जगह वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, अब उनकी जगह एक ट्राइबल वुमन लेंगी, ठीक है। ये मोदी जी ने ऐसे उनका एक रास्ता बनाया है। मिस्टर मोदी हैज शोन येट अगेन, इससे क्या दिखाया है मोदी जी ने, हिज कैपेसिटी टू कॉन्स्टेंटली स्क्रिप्ट इनविगोरेटिंग पॉलिटिक्स, जो कि इनविगोरेटिंग पॉलिटिक्स है। हमने इनविगोरेटिंग का मतलब पढ़ा था, राइट, आपको अगर याद हो तो। इनविगोरेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मेक वन फील स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। तो उन्होंने पॉलिटिक्स में एक अलग ही जान भर दी है, ठीक है, हम कह सकते हैं। मिस्टर मोदी जी ने मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बना के एक अलग ही जान भर दी है पॉलिटिक्स में। बाय गॉजिंग द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, मतलब उन्होंने कैसे जान भर दी है,
पॉलिटिक्स में गॉज करके, मतलब मेजर करके, अनुमान लगा के, इस चीज का निश्चय करके। किस चीज का निश्चय? पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, मतलब जो मेजोरिटी पे नहीं है, ठीक है, जिनकी संख्या बहुत ही कम है, या फिर जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उन कम्युनिटीज को ध्यान में रखते हुए, उनकी धारणाएं, ठीक है, उनके इमोशंस, उनके नीड्स को ध्यान में रखते हुए, गॉज करके, मतलब उनकी स्थिति का मौल्यमापन करके, जो उन्होंने मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बनाया है, वो एक सराहनीय बात है। इस चीज से क्या हुआ है, उनका पॉलिटिकल टर्निप, जो पॉलिटिक्स में उन्हें विजय मिली है अपोजिशन के खिलाफ, ठीक है। तो इससे उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया है कि एक प्रेसिडेंट, वो अगर एक प्रेसिडेंट की दावेदारी को पेश कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उनमें कुछ अलग सी क्वालिटीज होनी चाहिए। नहीं तो फिर से अपोजिशन बोलेंगे कि अरे ये आपने किस व्यक्ति को बिठा दिया, ये तो ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ठीक है, या फिर ये काबिल नहीं है। कुछ भी लोग, बहुत सारे अपोजिशन सवाल उठा सकती हैं। पर अब जब मुर्मू जी बनी है, मुर्मू जी का तो बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। सबसे पहले तो वो वुमन है, फिर वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो वो फर्स्ट वुमन होंगी, और वो गवर्नर ऑफ झारखंड, वो फर्स्ट वुमन गवर्नर है झारखंड की। उन्हें बहुत अच्छा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है। सो मोदी जी ने परफेक्ट सिलेक्शन किया है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का, ये हमें ऑथर बताना चाहते हैं। नेक्स्ट, Miss Murmu's elevation has elated tribes people across the country। ये जो उनका एलिवेशन हुआ, मतलब एलिवेशन मतलब किसी चीज से आगे बढ़ना। अभी उनका पद क्या था? एज अ गवर्नर था। अब वो गवर्नर के पद से आगे बढ़ गई हैं, अब वो प्रेसिडेंट बन गई है। तो ये जो एलिवेशन था, तो ठीक है, ये एलिवेशन, अब उनका तो एलिवेशन हुआ ही है, अब उनके एलिवेशन से जो ट्राइब्स पीपल हैं, उनका भी एलिवेशन होगा, उनका भी डेवलपमेंट होगा, वे भी अब आगे बढ़ेंगे पूरे देश में, ठीक है। एंड दिस could convert into significant electoral gains for the बीजेपी in the coming days। तो और इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा? आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शंस होंगे कहीं पे भी, चाहे वो स्टेट्स के इलेक्शंस हो या फिर आने वाले लोकसभा इलेक्शंस हो, उन सभी में बीजेपी को बहुत ही गेन होगा। किस लिए गेन होगा? तो वो कह सकेंगे ना कि हमने एक वुमन को प्रेसिडेंट बनाया है, फिर वो ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, तो ठीक है, वो तो इससे क्या बीजेपी दिखाना चाहेंगे कि वो ट्राइबल कम्युनिटी को, उनकी नीड्स को भी केटर कर रहे हैं, उन्हें उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो इससे उन्हें जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, आने वाले इलेक्शंस में। और कैसे सपोर्ट मिला है? हर कैंडिडेसी स्प्लिट द अपोजिशन। उनका जो कैंडिडेचर था, वो जो प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने जो पोजीशन के लिए इलेक्शन में वो अपना फॉर्म भरा था, उससे क्या हुआ? अपोजिशन भी स्प्लिट हो गया। कैसे स्प्लिट हो गया? एज मेनी मेंबर्स ऑफ द शिवसेना एंड जेएमएम सपोर्टेड हर। जेएमएम एक पार्टी का नाम है और शिवसेना भी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। तो उन्होंने भी डिसाइड कर दिया कि वे भी मुर्मू जी को ही अपना वोट कास्ट करेंगे। हमने देखा था कि क्रॉस वोटिंग हुआ है, न्यूज चैनल्स पे हमने पढ़ा था, ठीक है। सो अपोजिशन तो कभी भी हम देखते हैं कि जो मेजोरिटी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उन्हें कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। पर जबकि मुर्मू जी एक ट्राइबल है, तो वो वुमन है, तो इसीलिए अपोजिशन ने भी उन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये हमें ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राइब्स पीपल हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मिस मुर्मूज राइज टू द टॉप। ये जो अब वो प्रेसिडेंट बनी है मिस मुर्मू जी, इससे अभी ट्राइबल पीपल की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है। वे भी चाहेंगे कि अब उनका भी कुछ वे भला कर दें, मिस मुर्मू जी। बट दैट कुड बी रियलाइज, ये तभी ही संभव हो सकेगा इफ मोदी गवर्नमेंट बैक्स अप इट सिंबोलिज्म विद सब्सटेंस। अगर मोदी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है मिस मुर्मू जी को, ठीक है, वो जो भी कोई एक रणनीति बनाएंगी या फिर कोई भी एक स्कीम लाएंगी, कोई भी यू नो कोई भी कानून पारित करवाएंगी अगर आने वाले दिनों में, तो ये तभी संभव हो जाएगा
जब कैबिनेट उसका अप्रूवल दे और मोदी गवर्नमेंट, इनकी उनका जो पूरा कैबिनेट है, मंत्री दल है, जो बाकी के एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वे भी इनका समर्थन करें, तो ही ये पॉसिबल होगा, तो ही ट्राइबल पीपल के लिए कुछ भला हो सकेगा। This is the right moment to pay attention to the concerns that many tribal activists have been raising. यही समय है, सही समय है। किसका सही समय है? अटेंशन देने का, ध्यान देने का। किस चीज पर? जो कि कंसर्न्स हैं, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्राइबल एक्टिविस्ट्स अब तक उठाते आ रहे हैं, उन चीजों पे ध्यान देने का यही सही समय है। ठीक है। ऑफ अ सिस्टमेटिक, क्या वो कौन से वो इश्यूज हैं जो ट्राइबल एक्टिविस्ट्स जो सामने लेके आए हैं? सिस्टमेटिक इरोजन, सिस्टम इरोजन, ठीक है। हम सॉइल इरोजन पढ़ा है। जो सॉइल के ऊपर की परत रहती है, वो जब बारिश बहुत ही तेज रफ्तार में आती है, तो पानी ऊपर की परत, जो मिट्टी के ऊपर की परत है, पानी उसे अपने साथ बहा लेता है। तो ऐसे ही जिस तरीके से ट्राइबल लोगों की संख्या घटती जा रही है, वो किस तरीके से इरोड होते जा रहे हैं, किस चीज की इरोजन हो रही है? प्रोटेक्शंस अकॉर्डेड टू द ट्राइबल। यहाँ पे किस चीज का क्या चीज बहती जा रही है? जो ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्शंस दिए गए थे, ठीक है, वो चीज अभी घटती जा रही है। ट्राइबल लोग इस कंट्री में अपने आप को सेफ नहीं समझते हैं। और क्या क्या हो रहा है उनके साथ? हरासमेंट हो रहा है उनके साथ, सप्रेशन बाय द पुलिस, पुलिस उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, एंड जनरल इनटॉलरेंस ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स ट्राइबल कम्युनिटी। और जनरली भी ट्राइबल कम्युनिटी को कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। सो इस तरफ ये जो यही यही वो सभी चीजें हैं जो कि आज तक ट्राइबल एक्टिविस्ट हम सबके सामने लाते आए हैं। तो अभी वो सही समय है कि इन चीजों पे ध्यान दिया जाए। ठीक है। अब जबकि मुर्मू जी प्रेसिडेंट बन गई हैं, तो उन्हें भी इन चीजों पे ध्यान देना होगा। मिस मुर्मू पर्सनली may have limited leeway in championing any political cause। ठीक है, यहाँ पे लीवे का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। वो किस हद तक किसी चीज के तहत एक एक डिसीजन ले सकते हैं। उन्हें बहुत ही लिमिटेड फ्रीडम होगा इन चैंपियनिंग एनी पॉलिटिकल कॉज। अगर वो किसी भी विधेयक को पारित करना चाहती हैं, तो उनके पास बहुत ही एक लिमिटेड फ्रीडम हुआ, क्योंकि तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अलग से, कि अगर कोई भी विधेयक पारित होना, अगर किसी भी विधेयक को पारित करना है, तो इतना परसेंटेज ऑफ वोट फ्रॉम द लोकसभा मेंबर्स से मिले हमें। ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स इतने प्रतिशत उस विधेयक को पारित करने के लिए सपोर्ट दिखाएं अपना। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, इतना परसेंटेज, एक फिक्स्ड परसेंटेज रहता है, ठीक है, उतने परसेंटेज ऑफ मेंबर्स अगर उस विधेयक को समर्थन करते हैं, तो अगर वो बिल दोनों सदनों से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है, उसके बाद वो जो बिल होता है वो प्रेसिडेंट का अप्रूवल के लिए जाता है, तभी ही जाके एक विधेयक देश में लागू करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें ऑथर क्या कह रहे हैं कि उन्हें बहुत ही लिमिटेड फ्रीडम है। अगर वो खुद से ऐसे ही कानून बनाना चाहेंगी, तो वो नहीं होगा। इसके लिए सभी मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट हैं, जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के, चाहे वो राज्यसभा के हो या फिर लोकसभा के हो, उनका भी इन्हें सपोर्ट चाहिए रहेगा। But she has certainly become an inspiration for all disadvantaged sections of the society। उन चीजों को अगर हम अलग रखें, तो वो एक इंस्पिरेशन बनी है किन लोगों के लिए? डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जिनके पास कोई ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, या फिर जो बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं, ठीक है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है कि इन कम्युनिटी से भी लोग आगे बढ़ सकते हैं और ऐसी टॉप पोजीशन पे आ सकते हैं। स्पेशली किन के लिए? वुमेन के लिए, और वो भी ट्राइबल वुमेन, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, उनके लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है। एंड द पुअर इन द जनरल, और जनरली भी अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी में, हमने द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में पढ़ा था, वे बहुत ही फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं थी। ठीक है, हमने पढ़ा, अगर न्यूज चैनल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, ठीक है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। वी कैन से मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास।
ठीक है, तो जो पुअर लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए भी वे प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। ठीक है, कि वे लोग भी आगे बढ़ सकते हैं और वे भी देश के सर्वोच्च पायदान पे आके, जो सर्वोच्च पोजीशन है उस पे वे भी कंट्री को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, टू मेक हर इलेक्शन मोर मीनिंगफुल, उनका जो अब ये प्रेसिडेंटशिप है उसको अगर हम और ज्यादा मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, स्टेट पॉलिसी टू मस्ट बेंड टूवर्ड्स जस्टिस एंड फेयरनेस टू ऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सभी स्टेट्स के मेंबर्स हैं और जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं उन्हें भी कोऑपरेटिव नेचर दिखाना होगा, और जस्टिस जो है, फेयरनेस जो है, ताकि सबका भला हो, जस्टिस और फेयरनेस के पाथ पे सभी को चलना होगा। ठीक है, Ms. Murmu's election should not be used as convenient cause for inaction on countering the wider disempowerment ऑफ ट्राइब्स पीपल। सो यहाँ पे ऑथर हमें क्या कहना चाहते हैं कि मिस मुर्मू का जो ये प्रेसिडेंटशिप अब वे जो बनी है, ये एक कॉज नहीं बनना चाहिए। किस चीज का कॉज नहीं बनना चाहिए? कन्वीनियंट एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए फॉर द इनएक्शन ऑन काउंटरिंग द वाइडर डिसएम्पावरमेंट ऑफ ट्राइब्स पीपल। हमने पढ़ा था डिसएम्पावरमेंट में, लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना, दूसरे लोगों से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को आगे नहीं बढ़ने देना। तो अब वो प्रेसिडेंट बन गई है मिस मुर्मू जी। सो अब हम इस बात से मुकर नहीं सकते हैं कि हमारा कर्तव्य यहीं पे खत्म नहीं होता है कि चलो हमने एक ट्राइबल कम्युनिटी से एक वुमन को बना दिया है प्रेसिडेंट, अब बस बात खत्म हो गई। अब हमें ट्राइबल लोगों के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस हमारा काम तो बस अब खत्म हो गया। नहीं, इस तरीके से हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं, ये एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज हमारा नहीं बन सकता है। इनएक्शन मतलब काम ना करना, काउंटरिंग मतलब किसी चीज को सॉल्व करना। किस चीज को सॉल्व करना? जो ये फैली हुई डिसएम्पावरमेंट है, ट्राइब्स पीपल को आगे नहीं बढ़ने देना। ठीक है, वो जो आगे नहीं बढ़ सक रहे हैं, हमने पिछले पैराग्राफ्स में पढ़ा कि वे लोग किस किन कारणों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अब बस इतने से ही उनका प्रेसिडेंट बन जाना, इतने से ही अब हम रुक नहीं सकते, हमें और भी ज्यादा आगे बढ़ना है। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज क्लास। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। अगर हम ओवरऑल आर्टिकल को देखते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द टोन ऑफ द आर्टिकल? हमें ऑथर किस टोन पे हमें ये सभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। सो यहाँ पे ऑथर हमें एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल प्लस सजेस्टिव इज द टोन ऑफ दिस आर्टिकल। शुरुआत से एंड तक ऑथर एनालिटिकल एक टोन मेंटेन करके चल रहे थे। वे शुरू से एनालाइज ही कर रहे थे ना, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट बने हैं, कौन है हमारे प्रेसिडेंट, एक दलित वुमन बनी है। अब के जो करंट हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनको कौन रिप्लेस करेगा। ठीक है, दिस इज एनालिटिकल प्लस इंफॉर्मेटिव, वो हमें इंफॉर्मेटिव दे रहे हैं। ठीक है, तो मोर देन द इंफॉर्मेटिव इट इज एनालिटिकली। ठीक है, वे एनालाइज कर रहे हैं हमारे ऑथर कि अब इससे किन किन लोगों को फायदा होगा। ट्राइब पीपल को फायदा होगा, वुमेन्स को फायदा होगा, पुअर्स को फायदा होगा, और इससे पीएम मोदी जी को कैसे फायदा होगा, बीजेपी को कैसे फायदा होगा। ठीक है, पॉलिटिकल गेन्स होंगे, वो एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत से एंड लास्ट में ये जो उन्होंने कहा अभी हमने ऑथर ने कि अगर इस इलेक्शन को हमें मीनिंगफुल बनाना है तो जस्टिस और फेयरनेस मेंटेन करना होगा और एक कन्वीनियंट कॉज नहीं देना होगा, इन एक्शन के लिए, काम न करने के लिए एक्सक्यूज नहीं देना होगा। तो लास्ट में एक ऑथर हमें सजेशन भी दे रहे हैं। सो ओवरऑल एनालिटिकल इज द टोन, और अगर हम लास्ट पैसेज को देखें इट इज सजेस्टिव। सो एनालिटिकल प्लस सजेस्टिव इज द टोन ऑफ दिस पैसेज। So hope you have understood this session and hope you have liked this session. If you have liked this session, then please do like it and also share it with others. So I'm winding it now.
this much is this is it for the today's class. Okay, until we meet in our next class, keep watching the content on the Let's Learn. Okay, until we meet next time, bye bye everyone. Take care.